Good morning, students. In our last class, we have started our chapter political parties. Okay, students, chapter 6 of civics. So, in that, we have completed half portion and we have discussed what are the political parties. Political parties are beta a group of some peoples who come together to contest an election and hold power in the government. That group who have common interest, common policies, common program is called as a political parties. Then we have discussed the functions or need of political parties. So political parties are needed for the proper functioning of, we can say, democracy. Political parties contest election. If they wins, they form the government. If they lose, they form the opposition parties and affect the policies and programs of the government. Even political parties itself form the policies and programs for winning the elections for general citizens. Then political parties also form, I have told, the government. They play the role of opposition. They used to make laws. They shape public opinion. Political parties or political parties members are the part of public, is part of society. So they used to shape the public opinion. They affect the public opinion. Like that, we have discussed certain functions of political parties. Then we have discussed how many political parties we have. In that, we have discussed different forms of parties or different forms of government. In that, we have seen the one party rule, where only the countries where only one party rule is there, two party rule or multi party rule. So multi party rule, in our India we have a multi party rule. And today we are going to start with page number 79, national political parties. But a national political parties, those parties which are also called as recognized parties, that parties which are registered with election commission and that plays a large role. ठीक है, तो I am going to read this so that you can understand more. Democracies that follow a federal system, means federal system where power is distributed among different level. जब power का distribution होता है तो उसको बोलते हैं federal system. जब एक बंदे के हाथ में power नहीं होती है. All over the world tends to have two kinds of political parties. Obviously जहाँ federal system होगा तो वहाँ दो तरह की parties होती है. Federal system क्या? Central government, state government और local government. Local government तब होती है जब कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा हो. चाहे स्मॉल पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पे टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. तो जनरली जो कंट्रीज में है दो लेवल तो होते ही हैं. अगर फेडरल सिस्टम है दैट इज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. तो पार्टीज भी दो तरीके की हमको मिलेगी. सेंट्रल पार्टीज मीन्स नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज. दिस इज द केस इन इंडिया ऑल्सो. इंडिया में भी जो है अलग अलग टायर्स है. फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की पार्टीज हमको देखने को मिलती है. सेंट्रल लेवल पे नेशनल पार्टीज होती है, स्टेट लेवल पे स्टेट पार्टीज हमको देखने को मिलती है. देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज. दीज पार्टीज हैव द यूनिट इन वेरियस स्टेट. ऐसी पार्टीज जिनके जो अपने यूनिट्स जो अलग अलग स्टेट्स पे हैं, बट by and large all these units follow the same, और जो सेम पॉलिसीज सेम प्रोग्राम्स फॉलो करती है, एक डायरेक्शन में चलती है और उनके यूनिट्स अलग अलग, उनके जो फॉलोअर्स है अलग अलग स्टेट्स में है, उनको बोला जाता है नेशनल पार्टी. एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. जो भी पार्टी है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना जा रही है तो उसको इलेक्शन कमीशन के अंडर में रजिस्टर होना जरूरी है. वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर सम स्पेशल. हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है उनके लिए सारी पार्टीज इक्वल है, बट स्टिल जो है कुछ ऐसी पार्टीज है जिनको इलेक्शन कमीशन जो है स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करती है. नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज, नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी भी बोलते हैं, रिकॉग्नाइज पार्टीज डिक्लेयर करती हैं. It offers some special facilities to large and established parties. These parties are given. और जो special privileges देती है कुछ parties को इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो लार्ज पार्टीज हैं, जो रिकॉग्नाइज पार्टीज हैं, उनको स्पेशल सिंबल भी असाइन कर रखा है. जैसे कि बेटा अपनी कांग्रेस पार्टी है तो रिकॉग्नाइज पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लार्ज पार्टी है, तो उनका एक परमानेंट सिंबल है हैंड का. उसी तरह से जो बीजेपी है उनका परमानेंट सिंबल है दैट लोटस. इजंट इट बेटा? These parties are given a unique symbol, only the official candidate of that. और जो कैंडिडेट्स उस पार्टी से लड़ते हैं, खड़े होते हैं, उन्हीं को वो सिंबल यूज करने को जो है इलेक्शन कमीशन अलाउ करती है.
Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose. This is also called recognized political party. The election commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats. अब नेशनल पार्टी बनने के लिए या स्टेट पार्टी बनने के लिए किनको इलेक्शन कमीशन जो है नेशनल पार्टी डिक्लेयर करती है, किनको स्पेशल प्रिविलेज देती है, किनको रिकॉग्नाइज पार्टी, उसके लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स, ऐसे ही नहीं कि मर्जी से फेवर करेगी इलेक्शन कमीशन, भाई मेरा मन है इसको रिकॉग्नाइज पार्टी डिक्लेयर कर दे, ऐसा नहीं। उसका कुछ प्रिविलेजेस है, कुछ कंडीशंस जो है इलेक्शन कमीशन ने सेटअप कर रखा है कि जो पार्टी इन कंडीशन को फुलफिल करेगी उनको नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जाएगा, और जो स्टेट लेवल की कंडीशन को फुलफिल करेगी उनको स्टेट जो है लेवल की पार्टी डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट आर द कंडीशंस जो है, व्हाट आर द क्राइटेरिया लेट डाउन बाय इलेक्शन कमीशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग एज ए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। क्राइटेरिया अपन डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पार्टी, क्योंकि 1 मार्क्स में भी आता है बेटा, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन द रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी की पहले बात करें, स्टेट पार्टी बनने के लिए कम से कम जो है जो इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें 6% वोट उस पार्टी को मिलने चाहिए। आउट ऑफ ऑल द वोट 6% जो वोट है, अगर स्टेट पार्टी बनना है तो 6% वोट होने चाहिए, प्लस 2 स्टेट्स में पूरा क्लियर जो है मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, टोटल स्टेट्स में से 2 स्टेट ऐसे होंगे जिनमें वो पार्टी क्लियर विन करके आएगी, और उसके अलावा टोटल जितने वोट पड़े उसके 6% वोट उस पार्टी को मिलते हैं, तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, अ पार्टी सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। अब नेशनल पार्टी बनने की कंडीशन है कि 6%, जैसे 6% वोट उसमें थे, इसमें भी जो है 6% वोट उसको इलेक्शन में मिलने चाहिए, लोकसभा इलेक्शन में मिलने चाहिए, और जो राज्यसभा असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें 4 स्टेट्स में एटलीस्ट वो विन करके आनी चाहिए, and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national parties। उसमें 6% वोट और 2 सीट्स, इसमें 6% वोट और 4 सीट्स अगर विन करती है तो स्टेट पार्टी और नेशनल। ये क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोटबुक में करना है। फर्दर, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो है 2006 तक जो है हमारे पास 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने ये क्राइटेरिया को फुलफिल करके, इन कंडीशंस को फुलफिल करके इलेक्शन कमीशन की नज़रों में अपने आप को नेशनल पार्टी, रिकॉग्नाइज पार्टी जो है रजिस्टर करवाया था। तो कौन कौन सी 6 पार्टीज थी उनके बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, भारतीय जनता पार्टी, BJP, बहुजन समाज पार्टी, BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देन है नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब इनको मैं रीड करके आपको फटाफट एक्सप्लेन करती हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, जो अपने जो कंट्री की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, जो आज़ादी से पहले की पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। फाउंडेड इन 1885, आज़ादी हमको मिली 1947 में, और ये 1885 से पार्टी चल रही है। इलेक्शन की जो देश की आज़ादी की लड़ाई इस पार्टी के अंडर अपन ने लड़ी है। एंड हैज एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट्स, और इस पार्टी में भी बहुत सारे मतभेद जो है अपन कह सकते हैं स्प्लिट्स देखे गए, पार्टीशंस देखे गए। क्योंकि अपन ने आपने पढ़ा हो तो अपन ने पढ़ा भी था कि गरम दल और नरम दल के लोग थे, जो मतलब कुछ जो है शांतिपूर्वक तरीके से बात मनवाने में बिलीव करते थे, और कुछ लोग जो कहते थे कि लोग ऐसे नहीं मानेंगे, लातों के भूत है, उनको उस तरीके से समझाना चाहिए। तो कांग्रेस में भी मतभेद थे। play a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after Indian independence। और आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक जो है कांग्रेस पार्टी बार बार जीतती रही और पॉलिटिकल लेवल पे अपन कह सकते हैं एक तरह से डोमिनेट करती रही। Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern, secular, democratic republic in India. Ruling party at the center till 1977 तक ruling party रही, कोई पार्टी उनको टक्कर नहीं दे पाई। Then from 1980 to 89, ठीक है, 77 तक रही, 77 के बाद पावर गई कांग्रेस के हाथ में, फिर 80 में वापस आई और 89 तक वापस कांग्रेस ने रूल किया। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन, और 89 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस का सपोर्ट डिक्लाइन होता चला गया, बट इट कंटिन्यू टू बी रिप्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट स्टिल इट इज़ अ नेशनल पार्टी। हालांकि सपोर्ट लोगों का कम होता चला गया पर वो नेशनल पार्टी रही।
सेंट्रिस्ट पार्टी, नीदर राइटिस्ट नॉर लेफ्ट। सेंट्रल पार्टी है, न राइट की है न लेफ्ट की, सेंट्रल पार्टी है। इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन द पार्टी अपोज सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीक। किस डायरेक्शन में काम करती है पार्टी? कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है लेकर चलती है। सेक्युलरिज्म में सारे धर्म एक हैं, इस चीज़ को मानती है। जो माइनॉरिटी सेक्शन है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनके अपलिफ्टमेंट में इस पार्टी ने वर्क किया है। सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस, इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 145 मेंबर्स इन लोकसभा इलेक्शन। और 89 के बाद सपोर्ट कम हुआ, पर वापस 2004 में लोकसभा जो इलेक्शन हुआ उसमें लार्जेस्ट पार्टी विद 145 मेंबर्स थी। करंटली लीड्स रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो ये जब की बुक है तब का ये देखा जा रहा है कि उस समय जो है कांग्रेस जो है कोलिशन गठबंधन सरकार बना के जो है रूल कर रही थी। नेक्स्ट पार्टी है भारतीय जनता दल पार्टी, बीजेपी, फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जन संघ। wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and value। अब इनका क्या नारा था कि इंडिया को जो है एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, इंडिया के पास से कल्चर से वैल्यूज़ को लेके चलना है। हिंदुत्व का नारा दिया था इन्होंने। कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन nationhood and politics, wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India। और जम्मू एंड बीजेपी का नारा था कि किसी भी तरह से जम्मू एंड कश्मीर हमारा पूरा होना चाहिए, किसी के साथ हम शेयर नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव रिलीजन। प्लस दूसरा वो क्या चाहते थे कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्सेशन, जो रिलीजन की बातें करते हैं उन पर बैन लगाना चाहिए। इट सपोज बेस इंक्रीज सब्सटेंसली। और ये जो पार्टी है भारतीय जनता दल पार्टी 1990s के बाद फेमस हुई। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरिया, शुरू में सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट में ये फेमस हुई, बाद में जो है धीरे धीरे ऑल ओवर कंट्री इंडिया फेमस होती चली गई। द पार्टी एक्सपेंडेड सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरियाज, केम टू पावर इन 1998 as the leader of the National Democratic Alliance, includes several state and regional parties, lost election in 2000। 1998 में जो है पावर में आई, 2004 में वापस हार गई। इज द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, और एज ए अपोजिशन पार्टी जो है मेजर रोल प्ले करती रही लंबे समय तक, और आज एट प्रेजेंट बीजेपी रूल कर रही है। देन है थर्ड पार्टी, नेशनल पार्टी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, फॉर्म्ड इन 1984 में बनी थी अंडर द लीडर ऑफ कांशीराम। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित। किसके फेवर में खड़े हुए ये? दलित, आदिवासीज, ओबीसीज और जो रिलीजियस लेवल पे माइनॉरिटीज है, बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए ये पार्टी बनी। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये जो सारे जो लीडर्स थे, जो ओबीसीज अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे, जिन्होंने उस डायरेक्शन में वर्क किया था, उनसे इंस्पायर्ड थी ये पार्टी। स्टैंड्स फॉर द कोज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स ऑप्रेस्ड पीपल। इट हैज इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। बेसिकली उत्तर प्रदेश की पार्टी है एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन इज नेबरिंग स्टेट्स लाइक, और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के आसपास के जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, वहाँ पे भी ये पार्टी है। फॉर्म गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स, और अलग अलग पार्टीज का सपोर्ट पा के जो है बीएसपी बहुत बार उत्तर प्रदेश में जीत चुकी है। In the Lok Sabha election held in 2004, it polled about 5% votes and secured 19 seats। और 2004 के लोकसभा इलेक्शन में 5% सीट जीतकर और 19 सीट लोकसभा में उन्होंने सिक्योर की। फोर्थ पार्टी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम, मार्क्सिस्ट, जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं मार्क्सिस्ट। फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म और लेनिज्म। कार्ल मार्क्स और लेनिन के आइडियाज को फॉलो करते हैं। सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। किस में बिलीव करते हैं? सोशलिज्म में सारा समाज एक है, सेक्युलरिज्म में सारे धर्म एक है, और डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, और इंपीरियल पावर्स को, रॉयल पावर्स को जो है अपोज करते हैं। ठीक है, और कोई कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं कि कोई कम्युनिटी रूल नहीं करना चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन फॉर सिक्योरिंग द
ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया, देश में सोशल लेवल पर इकोनॉमिक लेवल में जस्टिस लाने के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा। एंजॉय सपोर्ट इन, और ये मेजर पार्टी है केरला की, वेस्ट बंगाल की, त्रिपुरा की, स्पेशली अमंग द पुअर एंड फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर एंड द इंटेलिजेंसिया, मतलब जो पुअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी है, वर्कर्स है, लेबरर्स है, उनमें ये पॉपुलर है क्योंकि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया। critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country, और किसके खिलाफ थी ये, जो ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है, फ्रीली जो कैपिटल मूव हो रही है, ये इसके खिलाफ थी। ये सिर्फ अपने देश के आइटम्स को प्रमोट करती थी। हैज़ बीन इन पावर वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक ऑफ 30 साल तक वेस्ट बंगाल ने इस पार्टी में रूल किया बिना ब्रेक के, कोई और रूल नहीं कर पाया। इन 2004 इलेक्शंस इट वॉन अबाउट 6% ऑफ वोट्स एंड 43 सीट्स इन लोकसभा। करंटली सपोर्ट द यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, फॉर्म्ड इन 1925, आज़ादी के पहले की पार्टी है। बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, सेम जैसे सीपीआईएम थी उसी तरह से बिलीव करती है। अपोज टू द फोर्स ऑफ सेक्शनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड पुअर, ये भी वर्किंग क्लास, फार्मर्स और पुअर के सपोर्ट में थी। बिकम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीपीआईएम। ये जो सीपीआईएम आपने आगे पढ़ा ना, वो सीपीआई का पार्ट था और बाद में दोनों पार्टीज में इस पार्टी में स्प्लिट होकर इसके दो हिस्से हो गए, तो सीपीआई कमजोर पड़ गई जब सीपीआईएम खड़ी हो गई। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की मेन पार्टी है। इट्स सपोर्ट बेस्ड हैज ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर, पर धीरे धीरे इसका सपोर्ट खत्म हो गया क्योंकि नई पार्टी खड़ी हो गई। इट सिक्योर्ड अबाउट 1.4% वोट्स एंड 10 सीट्स इन 2004 लोकसभा इलेक्शन। एडवोकेट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। करंटली सपोर्ट्स यूपीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। लास्ट पार्टी जो नेशनल पार्टी है वो अपनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, फॉर्म्ड इन 1999। ठीक है, जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ ना, जैसे सीपीआई पार्टी का स्प्लिट हुआ तो दो बन गई, उसी तरह से कांग्रेस का स्प्लिट हुआ 1999 में और कांग्रेस की दो पार्टियां बन गई, एक तो मेन जो आज है आईएनसी और दूसरी बन गई एनसीपीआई, स्प्लिट्स इन कांग्रेस पार्टी। एस्पाउस डेमोक्रेसी को प्रमोट करती थी, गांधी जी के फिलोसॉफी को मानती थी, गांधीलियन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म। वांट्स दैट हाई ऑफिसेस इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बोर्न सिटीजन। ये क्या चाहते हैं कि जो इंडिया के सिटीजन है, इंडिया के रहवासी है, उनको ही हाई पोस्ट मिलनी चाहिए। जो आउटसाइड के स्टूडेंट्स हैं, आउटसाइड से कोई आके इंडिया में हाई पोस्ट पे लगना चाहे तो उसको नहीं रंग लेने देना चाहिए। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज अ significant present in Meghalaya, Manipur and Assam. A coalition party in the state of Maharashtra in alliance with the Congress since 2004, a member of the United Progressive Alliance, UPA के मेंबर बन गए। तो ये सारी थी नेशनल पार्टीज। अब अपन पढ़ेंगे स्टेट पार्टीज के बारे में। ठीक है, Other than these 6 parties, most of the major parties of the countries are classified by the Election Commission as state parties. इनके अलावा जो parties है स्टेट लेवल की, उनको state parties और regional parties भी कहा जाता है। Yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. Parties like the Samajwadi Party and Samta Party and Rashtriya Janata Dal have national level political organization. ये सारी जो पार्टीज है, समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, ये सारी स्टेट पार्टीज हैं with units in several states. Some of these parties like Biju Janata Dal, Sikkim Democratic Front and Mizo National Front are conscious about their state identity. Over the last 3 decades, the number and strength of these parties has expanded. इनकी भी पावर कम नहीं है नेशनल पार्टी से, स्टेट पार्टी से की। This made the Parliament of Indian political more and more diverse. No one national party is able to secure on its own a majority in Lok Sabha. As a result, the national parties, मतलब नेशनल पार्टीज को स्टेट पार्टीज को अपने साथ लेकर ही चलना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक फिक्स परसेंटेज ऑफ वोट होता है जो नेशनल, अगर सरकार बनानी है ना तो इतने वोट जीतने जरूरी है। पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी उस लेवल तक रीच नहीं कर पाती, तो ऐसे में वो बनाते हैं गठबंधन सरकार या कोलिएशन गवर्नमेंट, दूसरे पार्टीज का सपोर्ट, सीट्स, एमएलएस को अपने अंदर मिला के। तो नेशनल पार्टीज को स्टेट पार्टीज को अपने साथ लेकर इंपॉर्टेंस देकर चलना ही पड़ता है। और काफ़ी बार ऐसा देखा भी गया है कि स्पेशली 1996 में जो है
जो गवर्नमेंट बनी थी वो अलायंस से बनी थी काफ़ी सारी जगहों पर। 82 पेज पर आप देख भी सकते हो कि अलग अलग पार्टीज के अलायंस दे रखे हैं। जैसे ऊपर देखो जम्मू एंड कश्मीर में मैप दे रखा है पेज 82 पर। जम्मू एंड कश्मीर में जो पार्टी बनी थी, इलेक्शंस हुए 1999 में, उसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तीनों ने मिला के जो है 2007 का मैप दे रखा है, सॉरी बेटा, 6 जनवरी 2007 में ये तीनों पार्टीज जो अलग अलग ईयर्स में फॉर्म हुई थी, उन्होंने तीनों ने मिलकर जो कोलिएशन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनाई थी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है आज का, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे अपन देखते थे ना लास्ट ईयर चैलेंजेस टू इलेक्शंस, उसी तरह से चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो टोटल 4 चैलेंजेस हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के आगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज को गलत बोला जाता है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देख रहे हैं पेज 83 में, द फर्स्ट चैलेंज इज लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। क्यों गलत है पॉलिटिकल पार्टीज? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में ही अंदर की डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। देश की डेमोक्रेसी को कैसे देखेंगे जब पॉलिटिकल पार्टी में खुद में मीन्स पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। पहली बात तो प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज के कौन कौन से मेंबर है। फिर जो मीटिंग्स होती हैं उसमें उन मेंबर्स को बुलाया नहीं जाता है। उसके बाद जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको नहीं, मतलब पार्टीज में कुछ ऐसे 2-4 टॉप लीडर्स हैं जो पूरी पार्टीज के डिसीजंस को लेते हैं और पूरी पार्टी को लेकर चलते हैं, बाकी मेंबर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनली एक दूसरे को जो है इक्वलिटी नहीं देते पार्टी में। तो ये एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के आगे। रीड कर देती हूँ मैं। द फर्स्ट challenge is lack of internal democracy within the party. All over the world, there is a tendency in political parties toward the concentration of power in one or few top leaders. Parties do not keep members registered, do not hold organizational meeting, and do not conduct internal election regularly. Ordinary members of the party do not get sufficient information on what happened inside the parties. ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी मेंबर्स है पार्टीज के, उनके रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उनको ये भी नहीं पता चलता कि पार्टी में चल क्या रहा है। तो पूरी पार्टीज को कुछ ही जो टॉप लीडर्स है वो लेकर चलते हैं। दे डू नॉट हैव द मीन्स और कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। एज अ रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। सिंस वन ऑफ यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट हाईएस्ट पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसएग्री विद द लीडर्स फाइंड इट difficult to continue in the party. More than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to the means internal democracy नहीं होने के कारण जो लीडर्स के चमचे होते हैं, टॉप लीडर्स के, उन्हीं को पार्टी में इंपॉर्टेंस दी जाती है, बाकी लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो फर्स्ट जो चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के आगे क्यों उनको गलत ठहराया जाता है, दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकेंड चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी सक्सेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रिलेटिव्स हैं उन्हीं को आगे से आगे जो है चांस दिया जाता है टॉप लीडर बनने का। जो एक्चुअली जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो दूसरे, उनको है इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो इसको आप खुद रीड करना। थर्ड है मनी मसलमैन। कहीं ना कहीं पार्टीज पर मनी का, जो रिच पीपल्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो पार्टी पे खर्च कर सकते हैं, उनको टॉप लीडर्स बनाया जाता है। जो पुअर लीडर्स हैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। उसके अलावा मसलमैन मीन्स जो क्रिमिनल कनेक्शन है, जिनको लगता है कि ये पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, तो उनको जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है पार्टी में। तो ये थर्ड चैलेंज है। लास्ट चैलेंज है मीनिंगफुल चॉइस। पार्टीज में जो है मीनिंगफुल चॉइस, आज जो सारी पार्टीज है ना वो एक जैसा सोचती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। सारी पार्टीज जो है लोगों को एक जैसा सर्व कर रही हैं, तो लोगों को कंफ्यूजन है, सारी एक जैसी पॉलिसीज प्रोग्राम है, तो मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। तो ये भी एक तरीके से लेकोना है, एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज। ये रीड करना आप लोग बेटा, आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लेना। तो दीज 4 आर द चैलेंजेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आता है। नोटबुक में करना है कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो फर्स्ट चैलेंजेस लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सेकंड चैलेंजेस डायनेस्टिक सक्सेशन, थर्ड चैलेंज इज मनी एंड मसल मैन, और फोर्थ चैलेंज है मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है अपना, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। मीन्स ये सारे चैलेंजेस हैं, ये परेशानियां हैं पार्टीज के साथ, तो इनको कैसे रिफॉर्म किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी नोटबुक में करना है। ठीक है,
तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट पॉइंट पर डायरेक्टली आ जा सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या क्या किया गया है अब तक। तो नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs MPs। जो हमारे MLAs MPs है ना, वो क्या करते हैं, लालच के चलते जो है, दूसरी पार्टी ने लालच दी तो उस पार्टी के मेंबर बन गए, इस पार्टी ने लालच दी तो इस पार्टी में शिफ्ट हो गए। तो जो शिफ्टिंग है इसको बोलते हैं डिफेक्शन। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 85 पेज पे नीचे ग्लॉसरी में राइट हैंड साइड दे रखा है कि चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। पार्टी चेंज करने को बोलते हैं डिफेक्शन। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लालच की वजह से जाने से या टॉप पोजीशन पाने के लिए जाने के लिए उसको कहते हैं डिफेक्शन। तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये करेक्शन किया गया, अमेंड किया गया, डिफेक्शन को रोका गया कि कोई भी MLA MP एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। तो ये सुधार किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज को कह सकते हैं सुधारने के लिए। बट इसका नेगेटिव साइड भी देखा गया कि जैसे डिफेक्शन लॉ लगा दिया गया, जब एक मेंबर दूसरी मेंबर पार्टी में नहीं जा सकता तो अब उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो गई कि चाहे उसकी पार्टी में गलत हो रहा हो, टॉप लीडर उसके साथ गलत कर रहा हो, पर वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, उसको मजबूरी में उसी पार्टी में रहना पड़ेगा। तो ये एक सुधार किया गया, पर उसको भी एज ए प्रॉब्लम देखा गया आगे जाके। फर्दर रिफॉर्म क्या कर सकते हैं, क्या किया गया, अपन क्या देख रहे हैं, क्या किया गया, क्या किया जाना चाहिए। ये दोनों अलग अलग रिफॉर्म्स अपन देखेंगे, क्या क्या चेंजेस किए गए। सेकेंड पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसलमैन। दूसरी सुधार जो अपने किया गया पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए कि मनी और मसलमैन्स के पावर को कम करने के लिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि जो है इलेक्शंस लड़ने से पहले कैंडिडेट को अपना एफिडेविट जो है देना पड़ेगा, जिसमें उसको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अगर उसके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है, क्रिमिनल केस, तो वो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होने लगा, बट इसमें भी क्या प्रॉब्लम आ गई आगे जाके कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है, ये चेक करने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है, लॉ तो बन गया पर उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया। थर्ड जो है क्या स्टेप लिया गया पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब ये कंपल्सरी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि सब अपने जो है इंटरनल इलेक्शंस करेंगे प्लस जो है इनकम टैक्स भरेंगे। These parties have started doing so, but sometimes it is mere formality. It is not clear if this step have to greater internal democracy in political parties. मतलब ये सारे रिफॉर्म्स तो कर दिए गए, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए, पर कोई भी ये चेक करने वाला नहीं था कि ये जो रिफॉर्म्स किए हैं ये प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हैं। तो ये रिफॉर्म्स किए गए, और क्या रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में, वो अब डिस्कस कर रहे हैं अपन पेज 86 राइट हैंड साइड। बिसाइड दीज मैनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। और क्या क्या सजेशंस है पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, तो नंबर 1, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल parties to maintain a register of its member, to follow its own constitution, to have an independent means political parties में internal democracy करने के लाने के लिए ये कंपल्सरी होना चाहिए कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए, सारे मेंबर्स को उसमें लिखा जाए। पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी लाने के लिए पार्टी में एक ऐसा मेंबर, जैसे जुडिशरी होती है ना देश में, वैसे पार्टी के अंदर जुडिशरी लेवल का एक बंदा होना चाहिए जो सबके लिए इक्वल डिसीजंस ले। ठीक है, तो ये सजेशन है। सेकंड सजेशन है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू द वुमेन कैंडिडेट। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन द डिसीजन। जिस तरह से वुमेन्स के लिए कोटा फिक्स रखा गया है कि पार्टी में 1/3 वुमेन्स को टिकट देना जरूरी है, उस तरह से 1/3 वुमेन्स का डिसीजन में पार्ट लेना भी कंपल्सरी कर देना चाहिए। थर्ड सजेशन दे रखा है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। मतलब जो पुअर पार्टीज है, जो कैंडिडेट्स के पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट को ये नियम बना लेना चाहिए कि गवर्नमेंट जो पैसे देगी उसी से ही जो है इलेक्शन कराए जाएंगे। चाहे गवर्नमेंट पैसे दे के, चाहे पेपर दे के, चाहे टेलीफोन का खर्च देकर, पेट्रोल का पैसा देकर, किसी ना किसी तरह से पार्टीज को सपोर्ट कर सकती है। तो ये सारे सजेशंस दिए गए जो अभी तक फॉलो नहीं किए गए, इंक्लूड नहीं किए गए, इन पे सरकार ने कुछ जो है आगे फर्दर स्टेप नहीं लिया है। तो क्या स्टेप्स
पॉइंट्स लिए हैं वो आगे 3 पॉइंट्स पढ़े, और क्या सजेशंस है जिन पर अभी कुछ काम नहीं किया गया, तो ये दोनों रिफॉर्म्स में आप लिखोगे, ठीक है। प्लस फर्दर 2 और लास्ट में एक सजेशन दे रखे हैं कि देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। 1, पीपल कैन पुट प्रेशर। दूसरे 2 तरीके हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारा जा सकता है कि लोग प्रेशर कर सकते हैं, ठीक है। पिटीशन, प्रार्थना कर सकते हैं। पब्लिसिटी, लोगों नारे लगा के, एगिटेशन, गुस्सा जता के पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जो है लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज में नारे लगा के, गुस्सा जता के, उनको प्रार्थना करके किसी न किसी तरह से जनरल पब्लिक जो है प्रेशराइज करके पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार ला सकती है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड मीडिया भी रोल प्ले कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने में, उनकी इमेजेस को जो है पब्लिकली कह सकते हैं खोल के। If political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become, और political parties के अंदर डर बिठा के लोग और मीडिया जो है उनको सुधारने पे मजबूर कर सकते हैं। जब पॉलिटिकल लीडर्स को लगेगा, पार्टीज को लगेगा कि अगर हम सुधरेंगे नहीं तो लोगों के आगे हमारी इमेज, हमारी पोजीशन चली जाएगी, तो वो सुधरने की कोशिश करेंगे। तो एक ये तरीका फर्दर सजेशन, कितने सजेशंस देख लिए पॉलिटिकल पार्टीज में जो बदलाव किए गए हैं, जो बदलाव होने चाहिए, और उसके अलावा भी फर्दर जो है ये सारे स्टेप्स 3 और ये अभी 2 अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये 8 पॉइंट से सारे रिफॉर्म्स में आप लिखोगे। सेकंड है पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज और कैसे इंप्रूव कर सकती है कि जब जनरल पब्लिक जो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, पॉलिटिक्स के हिस्सा नहीं है, जो समझदार लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनकर उनको अंदर से सुधार सकते हैं। तो ये फर्दर मोर स्टेप है। हियर अवर चैप्टर एंड। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो बेटा तो इजीली आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, गूगल मीट करके भी अपन क्लियर करेंगे डाउट्स। तो क्वेश्चंस मैंने बता दिए, रिफॉर्म्स वाला, चैलेंजेस वाला आप नोटबुक में करोगे। डिफेक्शन 1 मार्क्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा अपन ने डिस्कस किया नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी आ सकती है, आईएनसी पे शॉर्ट नोट पे लिखो, ठीक है। बीजेपी भी शॉर्ट नोट लिखो, और प्लस वो कंडीशंस मैंने क्राइटेरिया बताया 6% वोट्स वाला पेज 79 पे शॉर्ट क्वेश्चन, ये किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये सारा नोटबुक में करना ही आपका होमवर्क है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। थैंक यू बेटा।